education. Uh, Previously, it was known as HRD, Human Resource Development. Okay, so I'm there, and we just look for the works of like all the IITs, NITs, and IIM, and all the educational institutions means in our country. So that's the thing. But I just want to actually just being as I have also been a coach. Okay, that's why. But nowadays I don't get time. So today I have opportunity to grade it. Okay, so I just want to grade it. So the thing is that it means whenever I come, actually there are many Sunil studies here and Aswan and so many others. I just visit them, and that time there is some session because regular classes go on as it goes on every day with your teacher. But that day there is some session of we just talk, we just run a session of question and answer and something like that. And today I am just, it is only introduction. I am just going to introduce myself to you. So that is the thing, there is not more. There is a queue, but I am not going to waste time in that. So this is the thing that at last you can ask some questions if there is some in your mind regarding this language or regarding anything else. Okay. And I was just observing, and I tell you means almost it was okay. Actually, means first time you are presenting over here and you presented in a well manner. And I think there was nothing like that. I could not see anybody here that was hesitating or was in any confusion. They were coming that language or something is there, no matter grammar or something. If we just set them aside, so all was well there. And something actually the thing is that when I listen to my students, you know, that was the way. So at last I used to give them some homework. Homework means not like that homework that's the compulsory homework, but the what you should do like that. Okay. So the thing is that, for example, that if I ask something to you, would you tell me? Okay, there is nothing. There is no any barrier of language that if that is in Hindi also you can do it, because I just want to get it confirmed by you. Okay. For example, one thing. I thought, would you please just tell me what is the difference between self-centric and selfish? So, can I tell you Hindi? I think. That's why I told you earlier. There is no barrier. Selfish means that जो सेल्फिश पर्सन होता है वो अपने ग्रीड मतलब उसके जो हिसाब से सारी चीज़ें होना वो अपने लिए फ़ायदा सोचेगा सेल्फिश हर जगह। और सेल्फ सेंट्रिक मतलब जो अपने आप को सेंटर में रख के सारी चीज़ें करता है। अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं? खुदगर्ज। सेल्फिश को मतलब स्वार्थी कहेंगे, और जो सेल्फ सेंट्रिक होगा। अच्छा, आपने जब भी ये शब्द देखा था सेल्फ सेंट्रिक, आपने पता था पहली बार कहाँ देखा था इससे? किसी को बोलते सुना था। वो पर्सन कौन था पता है? सर हाँ, किस प्रोफेशन से था, क्या था? सर वो स्टूडेंट था, दोस्त था मेरा। हाँ, दोस्त था। वो किसी लड़की के बारे में कह रहा था कि वो सेल्फिश है। और अच्छा, कई बार हमको ये भी इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि हम कोई शब्द सुन रहे तो किससे सुन रहे हैं? हाँ, पड़ता है। क्योंकि इससे ये फर्क पड़ता है कि उसने जो शब्द सुना है वो उसके क्या मायने रखता है ना? अगर आप मुझे कहते हैं कि आप किसी प्रोफेसर से सुना है, जहाँ तक मुझे लग रहा है प्रोफेसर से तो सुना नहीं होगा आपने, ठीक है, वो जब गेस कर रहा था, मैं हो सकता है कि लड़के से सुना आते स्वार्थी होता है। सेल्फ सेंट्रिक उससे सीधा सा होता है कि वो आत्म केंद्रित बोलना चाहते हैं। जब आप आत्म केंद्रित बोलते हैं तो आपको क्या लगता है कितना निगेटिव जा रहा है, कितना पॉजिटिव जा रहा है? जब स्वार्थी होता है तो स्वार्थी से आप कहते हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, या वो अपने फायदे के लिए हो सकता है अगर आपका कुछ नुकसान करना पड़ा तो भी कर लेगा। लेकिन क्या यही चीज़ हम आत्म केंद्रित के लिए बोल सकते हैं? हो सकता है ऐसा? मैं अपना आत्म केंद्रित हो सकता है कि मैं खुद का केवल विकास करना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू डेवलप माई सेल्फ, बट ये तो जरूरी नहीं कि मैं दूसरों को हार्म करना चाहता हूँ। लेकिन स्वार्थी का जहाँ भी उसे वो अपॉर्चुनिस्ट होता है, जो स्वार्थी होता है ना, तो जब भी उसे मौका मिला वो अपना काम बनाने के लिए वो बिल्कुल कर सकता है, ठीक।
तो पहले तो जो वर्ड्स होते हैं ना, इनको ना पहले क्लियर किया करो। मैं ये नहीं कहता कि वही है, ये बहुत अच्छी, और सबसे अच्छी बात आई जस्ट मीन्स आपको अपलाड करूंगा कि आप ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, यूज करें। लेकिन हाँ, आप सुनते किससे हैं, आप किस माध्यम से सुनते हैं उससे, फिर उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर हैं, हम बहुत ही सेफ जगह पे हैं, हर जगह आपको इतनी सेफ नहीं मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे आप एक शब्द आपको बहुत मायने रखता है, आप कैसे यूज करें, कहाँ यूज कर रहे हैं। अगर ये गर्ल यूज कर रही है कि मीन्स आई हैव अ ब्रदर अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली और माय पेरेंट्स, मतलब कहना क्या चाह रही है, अलग अलग रहते हैं। हाँ, पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, उसके बाद ब्रदर वहाँ रहते हैं, ऐसा कुछ है, ये तो कहना बिल्कुल नहीं चाहती थी वो, है ना। उसका कहने का मतलब था कि मीन्स बिसाइड्स माय पेरेंट्स आई हैव अ ब्रदर, ओके, ये इस टाइप का, ठीक है। लेकिन उसकी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो क्या प्रूव कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि उसके माँ बाप और उसके भाई अलग रहते हैं, और अब उनके बीच में एडजस्ट कर रही है ना, कभी भाई के साथ रह रही, कभी माँ बाप के साथ रह रही। सो दैट इज द थिंग कि जो हम वर्ड्स यूज करते हैं ना, पहले उसको ना कंफर्म कर लिया करो, कम यूज किया करो, लेकिन उन्हीं वर्ड्स को यूज करो जो आपको कंफर्म है कि आप जानते हैं वो क्या है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब भी हम इस चीज पे ध्यान देते हैं कि भाषा है या लैंग्वेज है ये है, कोई बात नहीं, आप बोलेंगे घंटों तक हिंदी बोल सकते हैं, आप घंटों तक अंग्रेजी बोल सकते हैं, इसकी बात कुछ नहीं। अगर हमको अंग्रेजी बोलना अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलो हिंदी बोलो, लेकिन जो भी बोलो आप उसमें पूरी तरह से इस प्रकार से आश्वस्त हो कि आप जो बोले आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं। सुनने वाला क्या समझेगा उसकी तो छोड़िए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको खुद ही नहीं पता रहता कि आप जो बोल रहे हैं वो समझते कि आप क्या बोल रहे हैं, चाहे हिंदी में ही बोले, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि एक जो बेसिक हमारी अगर आपकी परेशानी कुछ है ना, तो वो हर लैंग्वेज में रहेगी, और अगर नहीं है तो फिर कोई लैंग्वेज में नहीं रहेगी। आप जिस तरह से हिंदी पढ़ते हैं वैसी अंग्रेजी पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन जो आप टेक्निक्स हिंदी में यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली दैट वो भी आप अंग्रेजी में यूज करेंगे, बहुत ही ऑथेंटिक आपकी लैंग्वेज बनेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसको घाल में मत कीजिए कि ये है या वो है, कि ये बहुत ज्यादा है या अंग्रेजी ऐसी है, ये कुछ नहीं। आपको तो खुद ही नहीं पता दिन भर में कितनी अंग्रेजी बोल देगा, उसमें से हिंदी को हटा लेंगे ना, पता चलेगा कि हिंदी से ज्यादा तो अंग्रेजी बोले, ठीक है। लेकिन नहीं पता हमको क्या बोले क्या नहीं बोले, तो पहली बात वो होती है, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि जब भी आपको कुछ चीज ऐसा लगे कि कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, एक क्यूरियस होने के बाद जो चीज़ बहुत रिपीट होती है ना, तो उसके बारे में एक बार अच्छे से जानने की कोशिश करो, और जानना जब भी फुर्सत मिले। आप स्टूडेंट हो, ठीक है, मैं नहीं मानती कि आपके पीछे बहुत ऐसे काम है कि आपको इतना समय नहीं मिलता कि आप सर्च कर सकें, है ना। और मैं मुझे कहता है सर्च करने की आदत डालिए आप हमेशा, नहीं। अगर आपको क्या है हम कि यहाँ पे बहुत रिपीट हो रहा था, ये एक लिसनिंग, आपने इसको बता सकते हैं ये एक वर्ड है, इतना तो पता है कि जितने भी वर्ड्स हैं दे फॉल अंडर एनी कैटेगरी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और सम अदर पार्ट्स, है ना, ये तो पता है ना हमको, है ना। सो नाउ आप बताएंगे मुझे किस शब्द भेद के अंतर्गत आता है। लेकिन मैं अंग्रेजी बोलूंगा तो अंग्रेजी बोलूंगा, ठीक है, हिंदी बोलूंगा तो हिंदी बोलूंगा, ओके, ठीक है। तो किस में आता है ये? ओके, दैट्स फैंटास्टिक। अब आप बताएंगे वर्ब जो होती है वो ये किस वर्ब के अंतर्गत आती है? ये आप बता रहे हो, उसकी संरचना बता रहे हैं, जो मुझे आप वो नहीं बता रहे कि इस क्रिया के अंतर्गत आता है। जो ये मैं नो दैट Form, work form. Photocopy that. Yes, sir. I'm happy. Just pass it up to him, please. Yes, red will work, no problem at all. Can you just spare some time, 10 minutes? This one. Please pass this one also to him. No problem. Okay. The red and red also. Just, Pass it up to him. Shall I erase anything from there? You can take this color too. no. Yes.